Hello students, welcome again in social science class. Today we will discuss our next chapter, chapter 19, that is Union Government, the Executive. As I had told you earlier that in our country our government has three organs: the legislature, executive and the judiciary. In last chapter we have read about the legislature means a law making body, and in India it is called union legislature, called parliament, which has another name, that is Sansad, and it has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha, and president is the integral part of the parliament. Now, second organ of the government, that is an executive. About this we will study in this chapter. What is an executive? Executive is an organ of the government. And what are its functions? It enforces laws made by the legislature, it executes them and runs the administration of the country. So here is first question: what is an executive? Mention its functions. Executive is an organ of the government and its function are: number 1, it enforces law made by the legislature. जो legislature ने पार्लियामेंट में लॉ पास हुए हैं, अब उन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का जो टास्क है वो कौन करता है? एग्जीक्यूटिव करता है. देन एग्जीक्यूट ऑन देम, उनके ऊपर काम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. लास्ट वन इज रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री. तो ये भी किसका टास्क है? एग्जीक्यूटिव का. So meaning of executive and function of executives are there. Now, Constitution of India provides for a parliamentary form of government. So there are two types of executive. How many types of executive are there? There are two types of executive: the nominal executive and the real executive. Now we will understand what is nominal and what is real executive. India is a republic. In chapter 16 our constitution we have learned about that. Why India called republic? Because the head of the state, that is president, is a elected person among the people and its position is not hereditary. जो president है वो elected होता है, hereditary नहीं है like England. Clear? And she is vested with all the executive powers, but they all are exercised by the Union Council of Ministers headed by the Prime Minister. मीन्स जितनी भी पावर्स हमारी कंट्री में होती हैं ऑलमोस्ट दे आर इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नेम पर होती हैं, बट उन्हें जो एक्चुअल में यूज़ कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. सो टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल एंड रियल. Who is called nominal executive? The president is called nominal executive. Now question arises, why president called nominal executive? प्रेसिडेंट को नॉमिनल का मीन्स नाम मात्र का, प्रेसिडेंट को नॉमिनल एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? देयर वी कैन गिव द थ्री आर्गुमेंट्स. नंबर 1, here it is given, the president is nominal executive because he or she is bound to act on the advice of the council of ministers. The president does not wish to accept any advice. She may send it back to the council of ministers for reconsideration, but if the same advice is sent back again, the president is bound to accept it. Means हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर कि एवरी बिल बिकम लॉ विद द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट. जब दोनों हाउस अप्रूव कर देते हैं उसके बाद प्रेसिडेंट के पास वो बिल जाता है और प्रेसिडेंट अपनी अप्रूवल के साथ उसे जब साइन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? बिल, लॉ बन जाता है. लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि प्रेसिडेंट इज़ बाउंड टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो बिल लोकसभा राज्यसभा ने अप्रूव करके दे दिया है तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करने पड़ते हैं.
ही शी कैन सेंड इट बैक फॉर द रिकन्सिड्रेशन, वो उन्हें कह सकता है, हाउस में वापस भेज सकते हैं कि आप इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करिए, इसको मॉडिफाई करिए, अपनी रिकमेंडेशन दे सकते हैं, सुजेशंस दे सकते हैं. बट इफ़ द सेम एडवाइस और सेम बिल कम बैक टू प्रेजिडेंट, देन प्रेजिडेंट हैज़ नो चॉइस, ही और शी हैज़ टू साइन ऑन दैट. क्लियर? मीन्स बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, बिना उनके साइन के वो लॉ नहीं बनेगा, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी चॉइस नहीं है, जो उनके पास बिल आया उन्हें उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा. ही कैन शी कैन गिव जस्ट सुजेशन और रिकमेंडेशन, इट फॉलो और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन द हाउस. अगर मेजॉरिटी ये कहते हैं कि यही बिल पास होगा, देन प्रेसिडेंट हैज़ टू साइन ऑन इट. तो दिस इज़ द फर्स्ट आर्गुमेंट. Second, I'll tell you, here it is not given. Listen carefully. As you all know, the Prime Minister is appointed by the President. इस चैप्टर में आएगा लास्ट में प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं. इस प्रेसिडेंट कैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट. To whom President nominate or appoint the Prime Minister? The name given by the majority party. Which party get the majority in the election? They suggest, they give a name to the President that they want to become that person as a Prime Minister. So President appoint him or her as a Prime Minister. But here she has no its own choice. Means कि जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा इलेक्शंस में वोट मिली हैं, मेजॉरिटी पार्टी जो जीती है पार्टी, वो अपनी तरफ से एक नेम सजेस्ट करते हैं. जनरली वो लीडर होता है पार्टी का, और उस नेम को प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर. तो वो अपनी मर्जी से उस नेम को हटा के किसी और को प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट कर सकते. जो नेम उन्हें गिवन है उसी को ही उन्होंने अपॉइंट करना होता है. तो मीन्स यहाँ पर भी प्रेसिडेंट की अपनी चॉइस नहीं है, सिर्फ उनका काम एक ये है कि उनकी स्टैंप लगेगी या उनका अब कंसेंट चाहिए, अदरवाइज़ उनकी चॉइस नहीं है. इसी तरह थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं दैट प्रेसिडेंट हैज़ द पावर ऑफ इमरजेंसी. When there is an extraordinary situation in a country, then president has power to declare emergency. We will study about this emergency power in this chapter in detail. I just want to say that president has power to announce the emergency powers, but she can declare only on the written advice of prime minister and the council of minister. इमरजेंसी पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती हैं, लेकिन वो तभी उन्हें अनाउंस कर सकता है, डिक्लेयर, व्हेन शी गेट द रिटन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. That's why now it is clear about from three arguments that president is the nominal executive. Yes. Now who are involved in the real executive? The council of minister and the prime minister, because all the powers are exercised by the union council of minister and the prime minister. That's why they called real executive. Clear? Now the composition of the executive. As you all know that India has a parliamentary form of government at both level, in the state and in the center. State level पर जो executive है, who involved in that? What does state executive at state level comprise of? It is governor, the chief minister and the council of minister. And what does union executive comprise of? At national level or central level, that is called union executive. It comprises the president, the prime minister and the council of ministers. Now we will discuss about all the members of the union executive one by one. So first of all, the president. As we all know, the president is the head of the state. Who is the head of the state? The president. For being a president, what qualification should what a person should have? So first of all, a candidate for the office of the president of India must be a citizen of India. First condition क्या है? She must be a citizen of India and he or she has completed age of 35 years. Next is she should be qualified to be a member of the Lok Sabha.
And last one, he should not hold any office of profit under the government at any level, कि वो गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिस में काम ना कर रहा हो, and he or she is qualified the Lok Sabha, then a person can be nominated or then can be applied for the presidential elections. Clear? These are the qualification. Now tenure, as you all know, tenure means term. For how many years a person elected for a president, office of president. The president of India hold the office for a 5-year term and can be re-elected. Dr. Rajendra Prasad, the first president of India, was the only president to have been re-elected for a second term. So he continued to be in office from 1950 to 1962. What is the tenure of president? It's 5 year. 5 साल के बाद इलेक्शंस दोबारा होते हैं और जो पर्सन पहले प्रेसिडेंट थे वो दोबारा भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एंड इफ़ द पर्सन इज डूइंग वेल एंड ही और शी कैन बी इलेक्टेड अगेन. There is an example in our country who was our first president, Dr. Rajendra Prasad, and he was elected again for the second term. What is the term of the Rajendra Prasad as a president of India? 1952 1962. Now next is election of the president. Most important topic. How the president of India elected. The President of India is elected by an electoral college consisting of only the elected members. First of all, the President of India is elected indirectly. उनकी इलेक्शन इनडायरेक्टली होती है, मीन्स सभी लोग जो 18 और अबव 18 हैं वो उनकी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते. उनके बिहाफ पर उनसे द्वारा जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हैं वो उन्हें चुनते प्रेसिडेंट को. सो द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ हेल्ड इनडायरेक्टली एंड देयर इज़ अ कमेटी और वी कैन सी द ऑर्गेनाइजेशन इलेक्टोरल कॉलेज. Electoral college, who are involved in the electoral college? Only the elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha and Legislative Assembly of the states, means MP and MLAs elect the president. Lok Sabha और Rajya Sabha के सिर्फ elected person. As you know, in the last chapter there are some nominated member which are nominated by the president. In Lok Sabha there are 2 members nominated and in Rajya Sabha 12 members are nominated. So these nominated members do not participate in the election of the president. दोनों हाउस के मेंबर्स के अलावा और कौन होते हैं? MLAs, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. जितनी भी स्टेट्स हैं उन सभी के MLAs पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में. एंड दिस इलेक्शन हेल्ड विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. And under this system, it is necessary to fix quota of votes to get elected. That should be more than 50%. कि एक पर्सन को प्रेसिडेंट बनने के लिए एक कोटा जो सिक्योर करना पड़ता है फिक्स वोट्स का, और वो कोटा कितना होता है? मोर देन 50%. अब फर्स्टली वी डिस्कस दैट. डू यू नो हाउ द इलेक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट हेल्ड? हियर इज yes the procedure of election of the president of India. ये आप सभी को पता है कि प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज एंड इट इज़ कंसिस्ट ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोक सभा, राज्य सभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल द स्टेट्स, एंड इट इज़ डन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल ऑफ वोट सिस्टम. तो अब इसके अंदर जो MPs हैं और MLAs हैं उनकी वोट कैसे कैलकुलेट की गई है? वैल्यू ऑफ वोट ईच MLA ऑफ द स्टेट असेंबली हैज़. फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी स्टेट की जितनी पॉपुलेशन होती है उसे डिवाइड किया जाता है 1000 से. देन इट इज़ डिवाइडेड विद द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ अ स्टेट असेंबली. यू नो दैट ऑल द स्टेट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ MLAs. So after dividing the population with the 1000,
further it divided with the number of the total elected members of the state assembly. और इसी तरह एमपी की वोट कैलकुलेट की जाती है टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द इलेक्टेड एमएलएज ऑफ द स्टेट असेंबली, जितनी भी स्टेट असेंबली के एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज हैं, फिर उनको दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर से डिवाइड किया जाता है, तो उससे हमारे पास एक एमपी की वोट जो है उसकी वैल्यू काउंट होती है. The election of the president is held in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote system, and each voter is expected to indicate his preference on the ballot paper. जैसे नॉर्मल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें क्या होता है आजकल ईवीएम होता है, जिसमें हर पर्सन जो है, जो अडल्ट सिटीज़न है, वो अपनी चॉइस के पर्सन के आगे का जो बटन है उसे प्रेस करते हैं और बीप साउंड आता है तो हमारी वोट कास्ट हो जाती है. लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होता है, बैलेट पेपर के ऊपर जो एमपी और एमएलएज है, दे पुट दे प्रेफरेंसेस, वहाँ पर वो अपनी प्रेफरेंस बताते हैं कि फ़र्स्ट चॉइस पे मैं किसे प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ और सेकंड प्रेफरेंस मेरी किस पर्सन के लिए है. सपोज़ कि अगर जिस पर्सन को उन्होंने फ़र्स्ट प्रेफरेंस पे रखा उनके इलेक्शन वो विनिंग नहीं होते, फिक्स कोटा वो सिक्योर नहीं करते, तो उस पर्सन की जो प्रेफरेंस है वो सेकंड प्रेफरेंस वो शिफ्ट हो जाएगी सेकंड चॉइस पे. मीन अगर फर्स्ट पर्सन वाला चॉइस वाला पर्सन अगर नहीं इलेक्ट होता तो वो उनकी जो वोट है वो किसको शिफ्ट हो जाएगी, सेकंड प्रेफरेंस को. Each voter is expected to indicate his preference on the ballot paper. If the candidate of voter's first choice is not getting elected, his vote may be transferred to the candidate of his second choice, and so on till a candidate is declared elected. Mean जब तक वो person elect नहीं होता तो उनकी जो choice है वो further shift होती रहती है. And a candidate, in order to be elected as a president, has to secure a quota, that is absolute majority of votes cast according to the following formula. और वो कोटा कैसे निकाला जाता है, the total number of valid votes divide by 2 plus 1, जो अभी हमने पहले भी कहा था, that is more than 50% of all the presidential elections held so far. The second preference votes were taken into consideration only once. That was in the case of the election of Mr. V.V. Giri in 1969. मीन्स इंडिया में एक बार ऐसा हो चुका है कि सेकेंड चॉइस वाले पर्सन जो वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे. एंड हु वाज दैट पर्सन, मिस्टर V.V. गिरी इन 1969. और जो एमपी और एमएलएज है ये अपनी वोट कास्ट करने कहाँ जाते हैं, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस में तो हमारे बूथ्स बने होते हैं, अलग अलग हर एरिया के अंदर बूथ बनाए जाते हैं. लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए एमपी एमएलएज कहाँ जाते हैं, एमपी कैन कास्ट द वोट्स आइदर इन दिल्ली और इन द स्टेट कैपिटल. लेकिन जो एमएलएज होते हैं दे कास्ट द वोट इन द स्टेट कैपिटल ओनली. एमपीज़ के पास चॉइस होती है कि वो स्टेट कैपिटल में भी डाल सकते हैं वोट अपनी, और वो दिल्ली में इंडिया की कैपिटल वहाँ जाकर भी वो अपनी वोट कास्ट कर सकते हैं. लेकिन जो एमएलएज होते हैं दे कास्ट द वोट इन द स्टेट कैपिटल्स ओनली. ओके, सो दिस इज़ द प्रोसीजर टू इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नाउ कम बैक टू द टॉपिक. यस, यहाँ पर डू यू नो में क्या बताया, जो हमने कहा था मिस्टर V.V. गिरी सेकंड चॉइस पे प्रेसिडेंट बने थे, वो इलेक्शंस कब हुए थे. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हेल्ड 55th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया ऑन अगस्त 1969. Varagiri Venkatagiri with the 4,20,077 votes won in the run-off election over his rival Neelam Sanjeeva Reddy, who got 4,05,427 votes, and it was for the first time in India that a presidential candidate, that is V.V. Giri, won the election on the basis of second preference votes. Clear? नाउ इम्पीचमेंट, इस टर्म के बारे में भी हम पिछले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं.
इम्पीचमेंट क्या होता है? द प्रोसेस टू रिमूव द प्रेजिडेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, that is called impeachment. In general condition, the president cannot be removed from his office. There is a proper procedure to remove the president, and that process is called impeachment. Or on what ground a president can be removed? If the president violates the constitution, she can be removed from office by a resolution of impeachment. And who passed this resolution? By the member of both house of parliament, and not less than 2/3 majority of the total membership. means दोनों हाउस पहले एक रेजोल्यूशन पास करते हैं 2/3 मेजॉरिटी से कि प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहे हैं, तब उनके अगेंस्ट वो एक प्रपोजल रखते हैं और उसे 2/3 मेजॉरिटी से पास करते हैं. देन प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड impeachment. Now succession to presidency means if the office of president falls vacant due to his resignation, death or impeachment, then who take the responsibility of the president? कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है किसी भी वजह से, उनकी टर्म होती है 5 इयर्स, कि अगर 5 ईयर से पहले उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, या उनकी डेथ हो गई, या इम्पीचमेंट के थ्रू उन्हें रिमूव कर दिया है, तो अभी टर्म बाकी थी लेकिन उनका ऑफिस वेकेंट हो चुका है, तो उस टाइम में कौन उनकी ड्यूटी या वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? The answer is Vice President of India take over the responsibility to officiate as president till the new president is elected. जब तक नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता तब तक वाइस प्रेसिडेंट जो है वो ऑफिशिएटिंग रहेंगे वहाँ पर. लेकिन जो नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन है वो विद इन 6 मंथ में हो जाने चाहिए. इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन 6 मंथ टू फिल अप द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट. बट if the office of both the president as well as vice president vacant, then who take responsibility? अगर दोनों ही एब्सेंस हैं, प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट भी, तब प्रेसिडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कौन संभालेगा? एन आंसर इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप जज होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जब तक कि इंडिया का नया प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं होता. ओके, नाउ एमोलूमेंट्स एंड इम्यूनिटीज़. प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्रॉ अ मंथली सैलरी ऑफ ₹5 lakhs एंड सम अलाउंसेस. She is entitled to a free furnished residence, and his official residence is the राष्ट्रपति भवन in न्यू दिल्ली. प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उन्हें रहने के लिए घर मिलता है वो कौन सा होता है? राष्ट्रपति भवन. और वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर. और जब अपनी वो टर्म कंप्लीट कर लेते हैं 5 ईयर, मीन्स आफ्टर द रिटायरमेंट, उसके बाद भी उन्हें जो बेनिफिट्स मिलते हैं, शी गेट द पेंशन. कितनी पेंशन मिलती है उन्हें? 1.5 लाख एंड थ्रू आउट द लाइफ. एंड इसके अलावा उन्हें एक फ्री रेजिडेंस मिलता है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, अ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट. ऑल दीज फैसिलिटीज़ गेट बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. क्लियर? These are the pictures of President House. Is now the important question: powers and function of the president. What are the powers and function of the president? This question can be asked in the exam collectively. Explain the powers and function of the president, or you can ask the by the title एग्जीक्यूटिव पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और फाइनेंशियल पावर्स. अलग अलग भी पूछा जा सकता है और कंबाइंड भी आ सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरीज को लर्न करिए. कौन कौन सी पावर्स होती हैं? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, फाइनेंशियल एंड एमरजेंसी पावर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज एग्जीक्यूटिव पावर्स. What are the executive powers of the president? Number 1, being head of the union executive, all the administrative decisions are taken in his or her name.
So who is the head of the union executive? President. And all the administrative decisions are taken in his her name. Number 2, he she make all the important appointments including those of the Prime Minister, Council of Ministers, Governors, Chief Justice, and judges of the Supreme Court, High Court, Comptroller and Auditor General of India, and Attorney General of India. मीन्स प्रेसिडेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव का हेड होते हैं और जितनी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं वो भी प्रेसिडेंट के नेम पर होते हैं और जितनी मेजर अपॉइंटमेंट्स होती हैं उन सभी को कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट. Clear? President also appoint the member of Election Commission, Finance Commission, etc. And he she is the supreme commander of Indian Defence Forces. He she has the right to be kept informed about all the decision of the Council of Ministers through the Prime Minister. तीनों डिफेंस फोर्सेस दैट इज़ आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स, इन तीनों फोर्सेस के जो सुप्रीम कमांडर होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. ही और शी इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस. एंड प्रेसिडेंट को ये राइट है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी डिसीज़न लेते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंट के पास होनी चाहिए, उसे लेने का राइट है. और वो इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है प्रेसिडेंट को? प्राइम मिनिस्टर. सो एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर क्या है? जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट होती हैं वो प्रेसिडेंट करता है. लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कौन होते हैं? जो फाइनेंशियल्स हमारे एक्सपेंसेस को देखते हैं और उन्हें ऑडिट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट के स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पर. और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो लीगल एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट के द्वारा दी गई ड्यूटी को परफॉर्म भी करते हैं. तो इन सब की अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट. इसी तरह इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स को भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं. तो ये याद रखना कि एग्जीक्यूटिव पावर्स के अंदर अपॉइंटमेंट्स आती हैं. डिफेंस जितनी भी फोर्सेस हैं उनके चीफ कमांडर, और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्री का पूरा किसके नेम पर होता है? जो डिसीजन है प्रेसिडेंट के नेम पर. नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव पावर्स. लेजिस्लेटिव विच आर रिलेटेड टू द लॉ मेकिंग. जैसे एग्जीक्यूटिव में हमने कहा दैट प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, सेम लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट के अंदर भी हमने देखा द प्रेसिडेंट इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. एंड व्हाट इज हिज लेजिस्लेटिव पावर्स? The president can summon, prorogue and address the two houses of the parliament. Every year, the first session of the parliament begin with his address. हर साल जब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, तो उसकी जो फर्स्ट एड्रेस मीटिंग होती है, बिगनिंग किससे होती है? विद द एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट. And she can dissolve the Lok Sabha before the expiry of its normal term if he is advised to do so by the Prime Minister. Generally the term of Lok Sabha is 5 years. हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था कि लोकसभा की टर्म कितनी होती है? 5 years. बट इट कैन बी डिज़ोल्व अर्लियर. अगर जो पार्टी है वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर रही है या किसी भी रीज़न से वो उसे डिज़ोल्व करें, तो वो डिज़ोल्व करने की पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, बट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. क्लियर? नेक्स्ट इज no bill passed by both house of the parliament become a law without his or consent. ये भी हमें क्लियर है कि कोई भी बिल लॉ नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं मिलेगी. और जैसे हमने कहा था कि लोकसभा के पास मनी बिल के रिगार्डिंग पावर ज़्यादा है, दैट मनी बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. लेकिन वहाँ पर भी क्या है? मनी बिल की प्रायर इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है. किसको? प्रेसिडेंट को. सो प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ एसेंशियल बिफोर अ मनी बिल इज़ इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा. इसके अलावा और क्या है लेजिस्लेटिव पावर्स में? 12 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा
and 2 members in लोक सभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. जो 12 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के अंदर, दे आर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड्स where they perform well, like in arts, science, literature, social service, sports, etc. She can also nominate 2 Anglo-Indian to the Lok Sabha if the community is not adequately represented. So these are the legislative powers. Number 1, President is an integral part of the Indian Parliament. President can summon, prorogue and address the 2 houses of the Parliament. Next is, every year the first session of the Parliament begin with his or address. Next, the President can dissolve Lok Sabha before its normal term with the advice of Prime Minister. And next, no bill become law without the consent of the President, and money bill also require the prior approval of the President. And last one, 12 members in Rajya Sabha and 2 members in Lok Sabha are nominated by the President. Clear? Now financial powers. जैसे हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स में भी पढ़ा था कि फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. तो दैट इज़ ऑल्सो कम इन द फाइनेंशियल पावर. First of all, the annual budget of the country is presented in the parliament in the name of the president. जो हर साल हमारी कंट्री का बजट तैयार होता है वो किसके नेम पर बनाया जाता है, किसको रिप्रेजेंट किया जाता है? प्रेसिडेंट को. पास चाहे वो पार्लियामेंट में होता है लेकिन वो किसके नेम पर होता है? प्रेसिडेंट के नेम पर. और सेकंड जो अभी हमने पढ़ा लेजिस्लेटिव के अंदर कि जितने भी मनी बिल्स होते हैं उन्हें प्रायर अप्रूवल चाहिए किसकी? प्रेसिडेंट की. एंड थर्ड, द प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ फाइनेंस कमीशन. In case certain extraordinary situation arises, the president can sanction money to the government out of the contingency fund to meet the situation. कि अगर कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आ जाती है तब उस टाइम प्रेसिडेंट के पास कुछ फंड्स होते हैं तो वो उन फंड से कंट्री को सिचुएशन से बाहर निकलने में हेल्प कर सकता है, वो फंड्स को सेंक्शन कर सकते हैं. सो दीज आर फाइनेंशियल पावर. नेक्स्ट इज जुडिशियल पावर्स. All the judges of the Supreme Court and the High Courts, including their Chief Justice, are appointed by the President. जितने भी जजेस होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, उन्हें कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट. And on appeal for mercy, the President has the power to reduce the sentence or grant pardon or amnesty. She can change the death sentence or can postpone it also. मीन्स वैसे तो हमारे जो जस्टिस का काम है वो किसका है? जुडिशरी, थर्ड ऑर्गन का, जिसमें कोर्ट्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स. लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पावर है कि कोई पर्सन जब लास्ट में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन या हाई कोर्ट, तो वो एक दया की मतलब पिटी मर्सी की अपील करते हैं प्रेसिडेंट के पास जाकर कि उनके वो माफ़ी मांगने की अपील करते हैं. तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो उसे माफ़ भी कर सकते हैं, उनकी जो पनिशमेंट है उसे कम भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगे तो. उनके पास ये पावर है. और अगर किसी को अगर डेथ का या फांसी की सज़ा मिली है तो प्रेसिडेंट उसे पोस्टपोन भी कर सकते हैं या उसे चेंज भी कर सकते हैं. लेकिन ये बहुत रेयर होता है क्योंकि जो कोर्ट्स के अंदर डिसीज़न लिए गए होते हैं वो बहुत डिस्कशन के बाद, हर प्रूफ के बाद लिए जाते हैं. लेकिन फिर भी एक लास्ट में चांस प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं कि उनको वो जो कन्विक्ट है वो उनके पास अपील कर सकते हैं. क्लियर? सो दीज आर जुडिशियल पावर. नाउ लास्ट इम्पॉर्टेंट आर emergency powers. What is an emergency? We'll discuss about the emergency powers tomorrow.